Assalamualaikum viewers. Cultural anthropology mid exam review number 1. Anthropology literally means the study of humans. Pure anthropology focuses on improving theories, concepts, and research methods. Neo evolutionism says culture evolves when societies gain more energy and better technology. When studying the effect of urbanization on family interaction, urbanization is the independent variable. To get behavioral data, interviewing is used. Collecting demographic data is census taking. America is an example of organic solidarity. Trying to get more than you give is negative reciprocity. The zakat system in Pakistan is an example of redistribution. Spread of free market systems worldwide is globalization. Short question number 1. What is psychological anthropology? Psychological anthropology जो है anthropology की एक ब्रांच है जिसमें anthropologist कल्चर का उस कल्चर में रहने वाले इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या असर होता है उसको पढ़ते हैं. Give an example of a society in which traditional gender roles are not followed strictly. Explain briefly. Chamdi tribe of Papua New Guinea. In this society, gender roles were observed to be the reverse of traditional expectations. Women were the dominant practical and managerial partners who provided food, while men were artistic, emotionally dependent, and focused on personal adornment. Long question number 1. What is the division of labor in the context of mechanical and organic solidarity? How does it affect independence? इमाइल दुर्खेम ने दो किस्म की सॉलिडेरिटीज का जिक्र किया था. एक है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और एक है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. वो कहते थे कि जो सिंपल सोसाइटीज होती हैं जैसे कबीले इकट्ठे रहते हैं वो इकट्ठे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटीज होते हैं और वो सारे अपने काम खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. और इसके बरक्स अगर हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की बात करें उनके अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जाती है. ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से उनके मुराद है कि हर एक बंदा अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है और वो एक दूसरे के ऊपर कामों के लिए डिपेंडेंट होते हैं. तो वो एक इकट्ठे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो दो किस्म की सॉलिडेरिटीज होती है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी. How horizontal and vertical functions of kingship contribute to continuity and solidarity. किंगशिप के दो फंक्शंस हैं. वर्टिकल फंक्शन में जो है पिछली जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि दादा, फिर उसके बाद अब्बू, फिर अब्बू के बेटे, फिर बेटों के बेटे. हॉरिजॉन्टल फंक्शन में जो सेम जनरेशन के लोग हैं उनको आपस में यूनाइट किया जाता है, फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स वगैरह. एग्जाम रिव्यू नंबर 2. The Hawaiian system submerged the nuclear family into a larger kingship group. Patrilineal descent is the most common worldwide. In matrilineal societies, the relationships between husband and wife usually considered fragile. Clans claim descent from a common ancestor but cannot explicitly trace all the lineage. When a society is divided into two halves based on descent, each half is known as moiety. Bilateral descent is also known as symmetrical descent. There are two main types of family structures that are generally recognized. एक है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स, और फिर आती है एक्सटेंडेड फैमिली जो जॉइंट फैमिली होती है. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. एक होते हैं ट्री क्रॉप्स, एक होते हैं सीड क्रॉप्स और एक होते हैं रूट क्रॉप्स. Short question number 1. Define unilineal descent and give examples. Unilineal descent is a kingship system where a person traces their ancestry and inheritance through only one parent's line, या तो अम्मी या तो अबू, rather than through both sides. For example, in traditional Arab or Chinese clans, a child belongs to the father's family group. Short question number 2. Differentiate between pure anthropology and applied anthropology. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में आप एंथ्रोपोलॉजी के रूल्स को, लॉस को इस्तेमाल करके उसको रियल लाइफ सिनारियोज पे अप्लाई करते हो. प्योर एंथ्रोपोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो थ्योरीज वगैरह को बेहतर बनाना होता है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज द किंगशिप सिस्टम अफेक्ट द रेजिडेंस पैटर्न. रेजिडेंस पैटर्न यानी कि रहते कहाँ हैं. तो इसमें कुछ पैटर्न्स हैं. पैट्री लोकल यानी कि जो हस्बैंड है उनके अब्बू के साथ रहना. मैट्री लोकल यानी कि जो वाइफ है उनके अब्बू के साथ रहना.
एविनक्यूलोकल में कपल कैन लिव विद नियर द हस्बैंड्स मदर्स ब्रदर, के हस्बैंड की अम्मी के भाई के साथ। एमबी लोकल और बाय लोकल, द कपल कैन लिव विद और नियर द रिलेटिव्स ऑफ आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, दोनों में से किसी एक के रिलेटिव के साथ रहा जा सकता है। न्यू लोकल में जहां पर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आपको इजाजत देते हैं आप वहां रहते हैं। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि हायरार्की, कि एक इंसान जो है ऊपर के लेवल पे, फिर नीचे वाला थोड़ा उससे कम है, फिर उससे भी कम लेवल पे कुछ लोग होंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मोर रिसेंट देन हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स और मैकेनिकल इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस हाई यील्ड एंड लार्ज पॉपुलेशंस। एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट एंड हाई लेवल्स ऑफ labor specialization. Intensive agriculture leads to even further specialization and use of technological inputs. तो इसमें जो है लेबर की ज़रूरत होती है और लेबर स्पेशलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है, यानी कि एक बंदा किसी काम में स्पेशलाइज्ड हो तो उसकी ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से सोशल हायरार्की बन जाती है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, तो वो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एग्रीकल्चर की वजह से। एग्जाम रिव्यू नंबर 3, प्रोटो लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज की फैमिली में जो लैंग्वेजेस का ओरिजिन होता है उसे कहते हैं प्रोटो लैंग्वेज। एग्रीकल्चर डिफर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर ड्यू टू द यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और हॉर्टिकल्चर में नहीं होता। पीपल कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री थ्रू नोन लिंक्स, इसे कहते हैं लीनेज, नस्ब। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इज अ सोशल हायरार्की वेयर जेंडर डिटरमिन्स एक्सेस टू resources and power. The use of high and low varieties of the same language in different situations is called diglossia. जैसे कि उर्दू ज़ुबान की अगर बात की जाए, कोर्ट कचहरी में उसकी जो इस्तेमाल होती है वो हाई होती है, या एजुकेशन सिस्टम में, या वैसी जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें, और आम रोज़मर्रा की जो ज़ुबान होती है उर्दू, उसे लो वैरायटी कह सकते हैं। तो लैंग्वेज की जो ये खसूसियात होती हैं कि वो हाई और लो वैराइटीज़ दोनों में इस्तेमाल हो सकती है, तो इससे कहते हैं डिग्लोसिया। Which marriage arrangement is characterized by a woman having more than one husband at the same time? Polyandry. Which marriage transaction involves the groom performing labor in exchange for a wife, often found in a societies lacking material wealth? Bride service. The German language is the mother tongue of English. Short question number 1. Briefly explain what does it mean by adaptive and maladaptive features of culture. Adaptive features वो होते हैं जो कि आपको रहने में मदद करते हैं, और मैल अडाप्टिव इसके बरक्स जो आपको नुकसान दे रहे हैं आप उनको इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल अडाप्टिव फीचर में आ जाता है कि अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हो तो आप वहाँ पे जो है ऐसे गर्म कपड़े पहनोगे जो आपको ठंड से बचाएंगे, ठीक हो गया। और मैल अडाप्टिव फीचर्स में जो है नॉइस पोल्यूशन आ सकता है, एयर पोल्यूशन आ सकता है, जो कल्चर का हिस्सा है पर आपको नुकसान दे रहा है। एक्सप्लेन द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली। सोशलाइजेशन, इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो सोशलाइजिंग यूनिट उसे मिलता है उसकी फैमिली होती है। इमोशनल सपोर्ट देती है फैमिली, सोशल आइडेंटिटी देती है, रेगुलेशन ऑफ रिलेशनशिप सिखाती है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी देती है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, गिव द डिफरेंस बिटवीन एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी। एथनोग्राफी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक कल्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं, और एथनोलॉजी में कंपैरेटिव स्टडी होती है बिटवीन टू और मोर देन टू कल्चर्स। डिफाइन एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी। एक्सोगेमी में कहा जाता है कि शादी जो है वो कबीले से या ख़ानदान से बाहर की जाएगी, और एंडोगेमी इसके बरक्स के शादी ख़ानदान से बाहर नहीं बल्कि अंदर ख़ानदान में ही की जाएगी या कबीले के अंदर की जाएगी।